काफी शांति सी हो गई। रिवाइज किया सबने जो भी लास्ट क्लास में किया था हमने? यस मैम। कमल जोत ने तो किया है, दैट्स ग्रेट। व्हाट अबाउट द अदर्स? Okay, so who will tell me which genetic material is more stable, DNA or RNA? I'm DNA. DNA. And why? Why is DNA more stable as compared And to because it has double helix Ma'am, because it's a structure. double one stranded by one. structure. ठीक है. It has two strands. दो strands होती हैं, double stranded Hydroxy group is है. absent. What? Repeat the And hydrogen group is absent. hydroxy. ठीक है, hydrogen ही hydroxy group is absent. ठीक है, hydroxy group is absent, which makes it more stable. It makes it less reactive also. And other than that, A It mutation. doesn't mutate easily. हाँ ठीक है, mutations don't take place easily, right? So due to these few factors, the DNA is a more reliable, you can say, genetic material for the storage of information. उसके बाद we talked about how does a DNA look like at the molecular level. ठीक है, molecular level पे वो कैसा लगता है, यानी कि कौन कौन से molecule से वो बना है. Okay, then there were a few terms such as chromatin, chromosome. So what is a chromatin? Chromatin is a noodle-like structure. संजीव फिर से बोलो. Yes, I'm listening. What is chromatin? हाँ बोलो त्रिशा. Ma'am, chromatin is like a noodle-like, a noodle-like structure, which is like which forms chromosomes, which helps in the division of cells. That's right. And anybody else? So whenever you are asked about chromatin, the very first thing that should come to your mind and to your tongue also is that chromatin is the thread of DNA. Okay. See, noodle कहना भी ठीक है, but if you use the term thread, that is more appropriate over there, right? So say that chromatin is the thread-like structure which represents the DNA. Okay. Then what is chromosome? When two chromatin merge together, they form chromosome. Okay, that's right. So when the chromatin condenses, it forms structures which are called chromosomes, right? तो chromosomes का clear है, ठीक है. उसके बाद I remember किसी बच्चे ने बोला था histone, है ना? histone की भी कुछ बात हुई थी. However, we could not discuss about it. तो histone क्या है? I think मैंने ये तो बताया था कि histone proteins होते हैं, right? So can you tell me what is the function of these histone proteins? Why are they important? And they have the information. नहीं. Aryaman says that proteins which help wrapping of DNA. That's right. जो histone proteins हैं, they help in the coiling or the wrapping of DNA. So it is something like this. जो histone protein होता है, that is not a single protein. Rather, it is a huge, you can say ball-like structure which is made up of 8 different particles और 8 different components. ठीक है. Large से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो आपको naked eye से दिखेगा. It is very very small, microscopic, लेकिन DNA के हिसाब से वो large है, right? तो ये हमारा हिस्टोन ऑक्टामर हो गया बीच में, ऐसे करके एक गोल वो बन जाता है. दिस इज कॉल्ड दी हिस्टोन ऑक्टामर. आई होप ऑक्टामर से सबको समझ में आ रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट पार्टिकल्स. इसके आसपास ये जो डीएनए है ये ऐसे करके कॉइल हो जाता है, ठीक है, यूं, और ऐसे निकल जाएगा.
Then there is another histone protein which looks something like this, ऐसे करके यूं, ठीक है, वो यहाँ पे आके ऐसे लग जाता है लाइक अ स्टेपल पिन, जैसे स्टेपलर होता है ना उसमें से जो पिन निकलते हैं वैसे से होके यहाँ पे लग जाता है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोन्स. इस तरह से जो हिस्टोन्स हैं वो डीएनए की पैकिंग में हेल्प करते हैं, राइट. हाँ, वन सेकेंड, लेट मी फिनिश. ओके, जब हम इस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखता है कि ऐसे बीच बीच में छोटे छोटे बीट्स दिखेंगे और बीच बीच में ये डीएनए है, लाइक अ थ्रेड और लाइक यू नो अ नेकलेस. तो इस स्ट्रक्चर को हम लेमैन टर्म्स में बीड्स ऑन स्ट्रिंग भी बोलते हैं, ठीक है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग. और ये है क्या, ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर है दिस इज दी हिस्टोन प्रोटीन रैप्ड बाय दी डीएनए. और बीच बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये डीएनए थ्रेड ही है जो दूसरे हिस्टोन प्रोटीन तक जा रही है, ठीक है. यस समिक, यू वर सेइंग समथिंग. ओके, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर. हाँ, अभिराज देखो हिस्टोन के आसपास जो है वो डीएनए आके रैप हो जाता है, ठीक है. ये जो स्ट्रक्चर बनता है दिस हिस्टोन ऑक्टामर which is enclosed by this another histone protein, और इसके आसपास ये जब डीएनए कॉइल हो जाता है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म न्यूक्लियोसोम? नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं, ठीक है. सो जस्ट रिमेंबर कि न्यूक्लियोसोम क्या है. इट इज नथिंग बट जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के आसपास कॉइल हो जाएगा उसे हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं. दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में आ जाता है, राइट. देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हेरिडिटी इन पर्टिकुलर. सो वी टॉक्ड अबाउट जीन. अब मुझे ये बताओ जीन क्या है, व्हाट इज अ जीन? Ma'am, functional segment of DNA. That's right, it's the functional segment of DNA, ठीक है. But if I were to talk about the structure, कि अगर मैं structurally बात करूं तो जीन क्या है डीएनए के टर्म्स में अगर मैं देखूं तो? Group of DNA strands. नहीं, single stranded And pattern of sequence. strands. हाँ, very good Tamanjot, right, very close. And sequence of the nitrogen basis. Very good, that's right, ठीक है. So gene is nothing but a particular sequence of the nitrogenous bases on a single strand of DNA. That is the gene. ओके, जो सीक्वेंस है वही तो इम्पोर्टेंट है. इसीलिए तो हमने देखा था कि म्यूटेशंस इतने ज्यादा इफेक्टिव कैसे हैं, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो इस जीन से बनने वाला प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा, राइट. सो दिस सीक्वेंस टर्म नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर डेफिनेशन ऑफ जीन, राइट. इतनी बात क्लियर है सबको? Yes. ओके, देन वी टॉक्ड अबाउट होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? Chromosomes which carry information about a trait. That's right. And somebody else? Homologous chromosomes are the chromosomes which carry information about the same trait, but their alleles might be different. Alleles हम इन chromosomes को कहेंगे, ठीक है. We can say that the form of information is different, right? You cannot or you should rather not use the term alleles when you are talking about the chromosomes, right? So definition बिल्कुल correct है, थोड़े से terminologies इधर उधर कर दो, बिल्कुल सही बात है, right? So homologous chromosomes क्या है? They have the same genes at the same loci, okay? Locus होता है singular, loci होता है plural, ठीक है. तो सेम लोकस पे या सेम पोजीशन पे उनके अंदर सेम जीन्स होते हैं. द ओनली डिफरेंस इज दैट उन जीन्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट है, राइट. देन वी टॉक्ड अबाउट मेंडल, ठीक है. ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम वाला पूरा कॉन्सेप्ट है ये अभी आगे आप और अच्छे से समझ जाओगे जैसे जैसे हम इस चीज को अप्लाई करेंगे आगे, ठीक है. तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की. तो मेंडल जो थे, what he did was he used pea plants, right? Why did he use pea plants?
Ma'am, because it grows easily and in less time. Right. It has a shorter lifespan, grows easily, does not require much care, and what else? One very important thing. We can It easily could- differentiate between two different pea plants. That's right. ठीक है. So the features or the traits were contrasting. बहुत ज़्यादा contrasting difference था traits के बीच में. ठीक है. अगर एक फ्लावर पर्पल है तो दूसरे पे व्हाइट है. बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. बीच का कोई कलर नहीं है ऐसा. हाँ तमनजोत बोलो. आपके पास इसकी कोई भी इसकी इस टॉपिक के बारे में कोई वीडियो है? मेंडल्स प्लांट एक्सपेरिमेंट वीडियो एज सच मुझे ढूंढनी पड़ेगी, बट सी व्हाट द थिंग इज कि आप जितना ज्यादा वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे उतना ही ज्यादा यू टेंड टू कंफ्यूज योरसेल्फ. ओके, क्योंकि ये जो चैप्टर है या ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप जब प्रैक्टिस करोगे आगे प्रोसेस तभी आएंगे. वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा उसमें. जैसे मैथ्स है ना, कितनी भी वीडियो देख लो, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा. इसी तरह से दिस कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी प्रैक्टिस. वीडियो है, अगर आपको जरूरत लगती है, मुझे कोई अगर बहुत अच्छी सूटेबल लगी तो मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप पे. राइट. Okay, so now let us talk about Mendel a little bit more. Okay, Naman is asking what is chromatin made of? Naman, chromatin is the DNA only. Okay, जब वो DNA thread form में होता है न्यूक्लियस के अंदर पूरा compact, हम उसे chromatin बोलते हैं. Right? Okay, ma'am. और मेरे को होमोलोगस क्रोमोसोम समझने में दिक्कत हो रही है. मुझे भी समझ नहीं आया होमोलोगस क्रोमोसोम. अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं समझ आए. चलो ठीक है. एक काम करते हैं, मियोसिस पढ़ते हैं. ठीक है, फिर होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आएंगे. मियोसिस याद है सबको? याद है? चलो ग्रेट. तो अब मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा. Meiosis is a form of cell division that takes place when the gametes are being formed. ठीक है, gametes are the sex cells which will fuse and result into fertilization. ठीक है ना, fertilization से आगे फिर एक new offspring develop होता है. Meiosis में क्या होता है? For example, these are the cells inside the testes. ठीक है, ये एक male testes के अंदर के cells हैं. So how many chromosomes should be there ideally in this cell? 23. 46. 46. ठीक है ना, अभी डिवाइड हुए नहीं है, अभी होंगे. तो क्रोमोसोम है 46, राइट? मतलब कि 23 पेयर. ठीक है, ये चीज हमेशा क्लियर रखना. 46 क्रोमोसोम्स एंड 23 पेयर्स, राइट? अब मैं अपनी ईज के लिए काम करती हूँ. आई विल जस्ट यूज से 4 क्रोमोसोम्स. ठीक है, क्योंकि मैं 46 तो ऑब्वियसली नहीं बना सकती. अब देखो, सिंपल सी बात समझो. हैव यू सीन कि कोई चीज या कोई ट्रेट ऐसा है जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स में है बट आपके पेरेंट्स में नहीं है, बट वो आपके अंदर है. देखिए कई चीजें, जैसे कई फेशियल फीचर्स ऐसे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, माई नोज रिजेंबल्स माई ग्रैंड मदर, जबकि मेरी मम्मा की भी बिल्कुल डिफरेंट शेप की है, मेरे पापा की नोज भी बिल्कुल डिफरेंट शेप की है, बट आई हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक नोज एज माई ग्रैंड मदर, राइट? So how is that possible? Because the gene for that shape of the nose has been passed on from my grandmother to my father and then from my father to me. ठीक है, ये बात समझ रहे हो? Are you people following up a little bit? Yes, ma'am. तो अब देखो वही चीज देखते हैं कि ये हुआ कैसे, right? So there are these chromosomes. ठीक है, ये हो गया डीएनए कंटेंट डबल. Now why have I drawn these two blue and these two red? क्योंकि मैं यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम शो करने की कोशिश कर रही हूँ. ये दोनों होमोलोगस हैं और ये दोनों भी होमोलोगस हैं. ठीक है, these two chromosomes are homologous and these two chromosomes are
होमोलोगस, राइट। इसका मतलब है कि अगर ये वाला जो क्रोमोसोम है, अब देखो अगर इस तरह से देखो, फॉर एग्जाम्पल ये मेल के सेल्स है ना, दीज आर द मेल सेल्स, यानी ये जो 1 था ये इसे इसके फादर से मिला होगा, और ये जो 2 वाला है ये इसको इसकी मदर से मिला है। सिमिलरली इनमें से भी ये वाला इसे अपने फादर से मिला है, ये वाला इसे अपनी मदर से मिला है, ठीक है। मतलब कि इंफॉर्मेशन इसके पास दोनों है, फादर से भी वही मतलब इंफॉर्मेशन आई है, उस जीन की इंफॉर्मेशन है, मदर से भी कोई जीन आया है उसी ट्रेट के लिए, ठीक है। बट ओनली वन इज बीइंग एक्सप्रेस्ड, सिर्फ एक अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। सो यू नो इफ आई टेक द एग्जांपल कि जैसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, राइट। एक बार रिपीट कर दो कि आपने क्या बोला इसमें। हाँ, डोंट वरी, फिर से देखो। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस क्रोमोसोम में हेयर कलर का जीन है विच सेज ब्लैक, और ये जो मदर से आया है ये फादर से मिला है क्रोमोसोम, ठीक है, ये वाला मदर से मिला हुआ है, दिस सेज ब्राउन, ओके। अब देखो दोनों के अंदर सेम जगह पे सेम लोकस पे वही वाले ट्रेट का जीन है, आर यू फॉलोइंग अप? जीन बिल्कुल सेम जगह पे है, दोनों जगह पे इंफॉर्मेशन क्या है, हेयर कलर की। बट इज इट पॉसिबल कि ये जिस आदमी का सेल है उसके अंदर ब्लैक और ब्राउन दोनों कलर के बाल हों? नहीं ना, एक ही कलर का होता है ना सिर्फ। यस मैम। राइट, इसका मतलब कि कोई एक होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उसका जीन ज्यादा पावरफुल है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए इस आदमी का हेयर कलर ब्लैक है या हो सकता है ब्राउन है। बट इंफॉर्मेशन इसके पास दोनों की थी, ठीक है, इंफॉर्मेशन दोनों से मिली थी, फादर से भी मदर से भी। एक्सप्रेस किसको किया? सिर्फ एक को। अब आगे देखो, जैसे जैसे हम मियोसिस पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि किस तरह से ये इंफॉर्मेशन आगे इसके चाइल्ड में पास होगी, राइट। ओके, 1 सेकंड, नमन कैसे says पता that, चलेगा? हाँ 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट मैम, बट व्हाई डिडंट दैट ट्रेट कम इन फादर? वुड देयर बी अ कॉम्प्रोमाइज लाइक हाफ ब्लैक हाफ ब्राउन? नहीं, ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। सी देयर आर सम जीन्स जो बिल्कुल ही ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, कुछ होते हैं जो अपने आप को कुछ हद तक एक्सप्रेस करते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे, डोंट वरी। When a gene skips a generation, what happens when a gene skips a generation? See, it is accumulating, ठीक है। अगर वो एक जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ तो वो इकट्ठा होता जा रहा है आगे आगे जाके, राइट। इट इज अक्यूमुलेट, इसीलिए हम डीएनए को क्या बोलते हैं? इट इज अ स्टोरर ऑफ इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, राइट। हाउ इज वन ऑफ द जीन ओवरपावरिंग द अदर? हाँ नमन, उस पे भी आएंगे, डोंट वरी, हम उस पे भी आएंगे कि एक जीन दूसरे को ओवरपावर कैसे कर रहा है, दूसरे के इफेक्ट को मास्क कैसे कर रहा है, राइट। यस शौर्य, यू वर सेइंग समथिंग? हम यही डाउट था, ये ओवर पावर। उस पे हम अभी आएंगे, जब हम मेंडल के लॉज पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी कैसे होता है। ये चीज थोड़ी सी क्लियर हुई कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है? यस मैम। यस, और दूसरा जो बच्चा था जिसे डाउट था, बोलो बोलो। यस मैम। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? हाँ बोलो सिद्धांत। हम एक बार डेफिनेशन भी लिखवा दो। डेफिनेशन अभी लिखवाती हूँ, डोंट वरी। पहले मियोसिस समझ लो, काफी हद तक होमोलोगस और आगे क्या हो रहा है वो अपने आप ही समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे see these homologous chromosomes have to go you know into different cells, अभी आगे डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि डीएनए हाफ होने वाला है, राइट। सो दे विल नाउ, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में अब कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। सो देयर इज अ स्टेज समथिंग लाइक दिस, देख रहे हो इनके आपस में ये जो आर्म्स थे ये इस तरह से फ्यूज हुए हैं, ठीक है, कहीं से भी हो सकते हैं, इट्स जस्ट दैट अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ तो इस तरह से बना रही हूँ, राइट। फ्यूज होने में क्या होता है कि दीज आर्म्स आर नाउ एक्सचेंजिंग सम जीन्स, आपस में कुछ जीन्स को या कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब कि हो सकता है कि इस जगह पे जो जीन था अब वो इस वाले में चला जाएगा, और इस जगह पे जो जीन था अब वो इस वाले में चला जाएगा। सिमिलर थिंग कैन हैपन ओवर हियर आल्सो, स्विचिंग हो सकती है जीन्स की, राइट। तो फाइनली जो मेरे पास
क्रोमोसोम्स आएंगे, they can be something like this. ठीक है, ये जो ग्रीन पोर्शंस मैं दिखा रही हूँ, दिस मीन्स कि यहाँ पे कुछ एक्सचेंज हुआ है जेनेटिक मटेरियल का, राइट? अब क्या होगा, सिंपल आगे का प्रोसेस आप लोगों को पता है कि जब आगे प्रोसेस होता है तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये डिवाइड होंगे, अलग अलग उधर चले जाएंगे, एक ब्लू ऊपर, एक ब्लू नीचे, एक रेड ऊपर, एक रेड नीचे, ऐसे करके आगे तो आपको पता ही है ना फिर सबको। बोलो बोलो, काफी शांत हो तुम लोग सब। ठीक है, सो आर यू गाइस ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यहाँ हुआ क्या? देखो अभी तक क्या था कि इस आदमी के अंदर सिर्फ कोई एक क्रोमोसोम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, ठीक है, कोई एक क्रोमोसोम या इस क्रोमोसोम के कुछ जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे और इस क्रोमोसोम के कुछ जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे। यहाँ पे अ कॉम्बिनेशन हैज बीन फॉर्म्ड। देखो एक कॉम्बिनेशन बन गया, इसका कुछ मटेरियल इधर आ गया, इसका कुछ मटेरियल इधर आ गया, मतलब कि अब जब ये वाला क्रोमोसोम पास होगा अगर जाइगोट में, तो इसके अंदर कुछ ट्रेट्स ग्रैंडफादर जैसे हैं, कुछ ट्रेट्स ग्रैंडमदर जैसे हैं। बात पल्ले पड़ी? समझे थोड़ा सा कैसे हुआ? Yes. ओके, सिद्धांत अंडरस्टूड। और बाकी बच्चे? Can you explain again? हाँ देखो देखो, सी देखो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वाले टर्म लेके चलते हैं, राइट? लेट्स सपोज कि ही इज द फादर, ठीक है, इसका आगे अभी जाइगोट बनेगा। अब इस फादर के अंदर ग्रैंडमदर की कुछ, ग्रैंडफादर की कुछ चीजें एक्सप्रेस हो रही थी, ग्रैंडमदर की कुछ चीजें एक्सप्रेस हो रही थी, मतलब इसकी मम्मा की और इसकी पापा की यार, ठीक है ना। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि जब ये पैटर्नल और मैटरनल वाले क्रोमोसोम्स के बीच में मटेरियल एक्सचेंज हो गया, तो एक कॉम्बिनेशन बन गया ना, नया ही कॉम्बिनेशन बन गया। देखो इस क्रोमोसोम पे कुछ नई इंफॉर्मेशन आ गई है, इसके जीन की जगह इस क्रोमोसोम पे कुछ नई इंफॉर्मेशन आ गई है। हो सकता है यहाँ पे पहले ब्राउन आईज थी, यहाँ पे अब इंफॉर्मेशन है ब्लू आईज की। यहाँ पे पहले फॉर एग्जाम्पल हाइट थी टॉल, अब यहाँ पे गलती से डॉफ आ गई है, गलती मतलब वही एक्सचेंज की वजह से यहाँ पे डॉफ हो गई है। सो कॉम्बिनेशन हैज बीन फॉर्म्ड, मतलब अब जो भी ये क्रोमोसोम आगे जाएगा इसके अंदर कुछ क्वालिटीज कैसी हैं, इस आदमी के फादर जैसी, कुछ क्वालिटीज कैसी हैं इस आदमी की मदर जैसी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मटेरियल दूसरे वाले क्रोमोसोम से भी आ गया ना। सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज, क्योंकि दोनों में सेम जगह पे ही वही वाले जीन्स हैं, इसीलिए वो मटेरियल एक्सचेंज करके नए कॉम्बिनेशंस फॉर्म कर सकते हैं, राइट? दैट इज व्हाई यू सी कि आपके अंदर कुछ ट्रेट्स आपके फादर जैसे हैं, कुछ मदर जैसे हैं, कुछ ग्रैंड मदर जैसे हैं, या फिर कुछ ग्रैंडफादर जैसे हैं, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन आपके अंदर आई है। ओके, द ओनली डिफरेंस इज कि कुछ इंफॉर्मेशन आपके अंदर एक्सप्रेस हो रही है और कुछ आपके अंदर बस स्टोर्ड है। हो सकता है वो कल को आपके बच्चों में शो हो, राइट? इट माइट हैपन दैट योर चिल्ड्रन माइट शो और एक्सप्रेस दैट पर्टिकुलर ट्रेट, बट यू डू नॉट शो इट। बात समझे? Ma'am, till how many generations a gene can pass a chromosome? There is no number, it is infinite. अभी भी इनफैक्ट आप देखो कि आज जाकर जिस फॉर्म में आप हो, दैट इज ओनली बिकॉज यू नो ऑल द चेंजेस, ऑल द म्यूटेशंस हैव अक्यूमुलेटेड इनसाइड योर डीएनए, राइट? दैट इज व्हाई यू नो वी से कि जो डीएनए है वो हमेशा इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा। सो देयर इज नो नंबर एज सच जिसे हम बता सके कि इतनी जनरेशन तक ही वो जीन पास ऑन होता है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स पास ऑन होगा जितनी बार रिप्रोडक्शन होगी, राइट? अभिराज इज आस्किंग व्हाट आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अभिराज डोंट वरी, हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे आएंगे, पहले थोड़ा आप बेसिक तो समझ लो, उसके बाद डिसऑर्डर्स समझना, ठीक है? मैम, इज इट पॉसिबल दैट वी डू नॉट हैव एनी ट्रेट ऑफ आवर पेरेंट्स, ग्रैंडफादर? नो, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। जब आपको डीएनए ही उनसे मिल रहा है, द ब्लूप्रिंट ऑफ योर बॉडी इज कमिंग फ्रॉम देम, तो इन्फॉर्मेशन तो मैचिंग होगी ही ना, ट्रेट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
हो सकता है कई बार फिजिकल अपीयरेंस ना मिले, बट अंदर कई बार कुछ चीजें फिजियोलॉजिकल होती हैं जो चीज मिलती है. फॉर एग्जाम्पल इफ योर फादर हैज अ वेरी गुड मेटाबॉलिज्म, हो सकता है आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा हो. सो इट इज ऑल बिकॉज आपके एंजाइम्स बिल्कुल फादर के ब्लूप्रिंट के ऊपर बने हैं, राइट? द सेम थिंग इज दैट. मैम जैसे ऐसा हो सकता है जैसे मम्मी पापा जो पेरेंट्स का नेचर है, मतलब लाइक मेंटली नेचर जो होता है वैसा ही बच्चे में. देखो एज सच इसका कोई फिजियोलॉजिकल बेस अभी तक इतना है नहीं, ठीक है. हाँ, वो हो सकता है कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह का रोल होता है बीच में, बट अगर आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें देखते हैं कि यू नो इट हैज मोर बेसिस और मोर रूट्स इन द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन, इन द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट दे ग्रो इन. ओके, तो वो बिहेवियर कई बार जैसे हम देखते हैं कि बच्चों का बिहेवियर बिल्कुल पेरेंट्स जैसा हो गया, वो इसलिए क्योंकि वो पूरा दिन अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट? मैम सो क्रोमोसोम्स के थ्रू एक फिजिकल फीचर्स ही पास ऑन करते हैं. हाँ, फिजिकल फीचर्स, फिजियोलॉजिकल, बॉडी के प्रोटीन्स, एंजाइम्स, बाहर की अपीयरेंस, वो सब, ठीक है. कैन देयर बी सम डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन ज़ाइगोट डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स? नहीं बच्चे, कैसे हो सकती है बताओ? अगर पेरेंट्स का ही डीएनए पास हो रहा है ज़ाइगोट में तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? पेरेंट्स से डिफरेंट हो सकती है ग्रैंड पेरेंट्स की आ जाए, क्योंकि पेरेंट्स में भी तो ग्रैंड पेरेंट्स वाली ही थी ना. समझ रहे हो बात को? तो वो चीज पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खानदान से ही अलग आ जाएगी किसी और की, राइट? बिकॉज वो एज इट इज ब्लूप्रिंट या आपका डीएनए पास हो रहा है. देन व्हाई वी लुक डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स? अरे दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. यू लुक डिफरेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स क्योंकि देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक है ना. कुछ चीज ग्रैंडफादर का जीन आ गया, कोई जीन आपका ग्रैंड मदर का एक्सप्रेस हो रहा है, कोई फादर का, कोई मदर का, इसीलिए आप अलग लगते हो, राइट? एज इट इज, अब देखो ना, अगर एज इट इज यही वाला पास हो जाता, इफ these two homologous chromosomes would have been passed as it is बिना किसी रिकॉम्बिनेशन के, तो आप बिल्कुल अपने फादर जैसे लगते, कोई चेंज नहीं होता उसमें. लेकिन यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है ना. अब ये आगे जब सेग्रीगेट होंगे, अलग अलग इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, मतलब इधर उधर जा रहे हैं रैंडमली, तो उसी वजह से तो आपके अंदर इतने सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बने, ठीक है ना. वरना आप एज इट इज अपने फादर जैसे लगते. Can some genes come from our parents siblings? Can some genes come from our parents? मतलब अच्छा, पेरेंट्स के सिबलिंग्स, पेरेंट्स के सिबलिंग्स से आज सच नहीं, क्योंकि देखो पेरेंट्स के सिबलिंग्स में कहाँ से है? ग्रैंड पेरेंट्स से ही आए ना, तो वही चीज आपके पेरेंट्स में भी है. सो दैट यू नो जस्ट टोटली डिपेंड्स, दैट्स अ रैंडम असॉर्टमेंट. हो सकता है कि ग्रैंड पेरेंट्स की कुछ चीज आपके अंदर आ जाए जो आपके अंकल और आंट्स में भी है, तो फिर आप लोग थोड़े सिमिलर लगोगे, राइट? बट एज सच ऐसे पेरेंट्स की सिबलिंग्स की नहीं आ सकते आप में, क्योंकि वो भी तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे ना, ग्रैंड पेरेंट्स पे. ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, okay, great. ओके चलो, तो आप लोग जल्दी से होमोलोगस क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन लिख लो, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ते हैं. आज कम से कम एक मेंडल का लॉ तो कंप्लीट करना ही है. चलो, म्यूटेशन के बारे में, डिड यू पीपल राइट एनीथिंग अबाउट म्यूटेशन इन द लास्ट क्लास? नो मैम. नो, चलो ठीक है. राइट डाउन अबाउट द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फर्स्ट, उसके बाद म्यूटेशन के बारे में लिख लेना.
मैम ऑफस्प्रिंग क्या है? ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग मतलब जो किसी का बेबी होता है ना आगे, उसे हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। ओके मैम एट द सेम के आगे क्या लिखा है? लोकाई, LOCI, out of the pair. अच्छा चलो, I'll speak it out along with that. Okay, out of the pair, one is inherited from the mother, the other is inherited एट द सेम के बाद क्या लिखा है आपने? जीन्स एट द सेम। लोकाई, लोकाई, LOCI। पिछली क्लास में लोकस बताया था ना, LOCS लोकस, तो उसका प्लूरल है ये लोकाई। नहीं, you don't have to draw this diagram, Anya. अब ये साइड वाला लिखना है। If you guys want to write it, you can. But वैसे I would have preferred कि मैं mutations आपको लास्ट में लिखवाती, but ठीक है, अभी लिखा हुआ है तो लिख लो आप लोग, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप समझ तो चुके हो ना म्यूटेशन क्या है, तो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। दोनों लिख लिए। चलो गुड, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेंडल के लॉज, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द वेरियस studies and researches that Mendel had done over the period of 14 years, he proposed 3 laws, ठीक है। Okay, Daksh is asking how does mutation happen? See, mutation can have a lot of causes, जैसे कि आजकल radiations जो हैं, those are one of the major causes of these mutation. उसके अलावा there are some natural precursors of radiations also, जैसे atmosphere में there are certain natural gases, जैसे कि mustard gas वगैरह जो है, that is known to be a precursor of mutation. अगर कोई इंसान उसके regular contact में आता है तो उसके अंदर ये म्यूटेशन कॉज कर सकता है, और साइंटिस्ट ने इसे प्रूव भी किया है। उन्होंने एक बार ओकरा की एक स्पीशीज में म्यूटेशन करवा के देखी थी मस्टर्ड गैस से, एंड दे वर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, राइट। उसके अलावा वोल्केनो जब इरप्ट होते हैं तो उनके अंदर से भी देयर आर सर्टेन रेडिएशंस दैट are emitted, which can also lead to mutations, right? So anything that has the capacity to cause vibrations or can create frequencies which can go into your cells and I would say कि can force your nitrogenous bases to swap their places, ठीक है, वो चीज म्यूटेशन कॉज कर सकती है। Is Daksh saying something? Daksh, you're not audible. I'm saying that I have the doubt is clear now. What? Your voice is very low. Chat box में लिख दो, ठीक है, वहां से मैं पढ़ती हूँ। मैम हाँ बोलो कमनजोत। मैम 4 लॉस नहीं होते? क्या नहीं होते? मैम मेंडल के 4 लॉस। नहीं 3 है मैम बुक में 4 लिखे। और फोर्थ कब आया? क्या लॉ ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सीक्रेट सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, ये लॉ ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स जो है, ये एज सच मेंडल ने प्रपोज नहीं किया था बोल के, दिस वाज जस्ट वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज स्टडीज। उन्होंने बोला था कि ये यूनिक कैरेक्टर है, जो इसीलिए दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ हिज स्टडीज।
बट हम देखेंगे कि ये यूनिवर्सल नहीं है। अब जैसे देयर आर सम प्लांट्स, जैसे आप रोजेस की वैरायटीज देखते हो, एक प्लांट है जिसपे रेड आता है, एक प्लांट है जिसपे व्हाइट आता है, एक है जिसपे पिंक भी आते हैं, येलो, ऑरेंज, बहुत अलग अलग तरह के रोजेस है, राइट। सो कुछ ऐसा मर्जिंग हो रही है वहां पे जीन्स की, जिसकी वजह से दीज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर कमिंग अप। सो यूनिक कैरेक्टर वाला जो ये कैरेक्टरिस्टिक है या फिर ये जो प्रोपोजिशन है, दैट वाज ओनली बेस्ड ऑन द पी प्लांट, राइट। Can mutation lead to changes in physical characteristics of humans? Yes, yes. If the mutation is a drastic one, if it is leading to the production of proteins that are different or that are new for the human body, they can even be lethal or they can have some physical changes in the body. अब physical changes की अगर आप बात करो तो आप देखते हो that you know in today's time the hairline of people has really receded backwards. पहले के आपने लोग देखे हैं, उनकी hairline कितनी आगे से होती थी, बाल ही बाल होते थे सिर पे, हाथों पे। बट नाउ एज यू नो वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स मोर रेडिएशन प्रोन एनवायरनमेंट्स, हम देखते हैं कि लोगों की जो हेयर लाइन है, सर के जो बालों की लाइन है, वो पीछे की तरफ जाती जा रही है। अब लोगों के फोरहेड ज्यादा ब्रॉड है ना। उसके अलावा क्या चीज देखते हैं हम, जो छोटे बेबीज हैं, पहले when the infants used to be born, they did not open their eyes for like about 10 or 15 days. सोते रहते थे, जागते भी थे तो रोते थे eyes close करके, they did not open their eyes. Now you see that the moment a child is born, he or she can open their eyes, they can look up, they react to sounds. पहले बच्चे ऐसे नहीं करते थे, हाथ पैर बंद रखते थे, ऐसे clench करके रखते थे अपनी fist को। So these are all changes, and how are these changes occurring? There are certain minute mutations that are taking place on a regular basis. Clear? चलो तो आगे चलते हैं। The very first law that we need to understand and also practice, क्योंकि it forms, चलो ये सब आज स्किप ओवर क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। जब मुझे ऐसे लगेगा कि समथिंग इज वर्थ राइटिंग, आई विल लेट यू नो। ये आई थिंक यू हैव रिटन इन द लास्ट क्लास, हेरिडिटी के बारे में लिखा था। नो मैम। ओके चलो जल्दी से लिखो। I'm done. ओके ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं मेन बातें, कल हम समझ चुके हैं। बीच में कहीं भी कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लेना, नॉट एन इशू, राइट, बिकॉज़ दीस डेफिनेशंस आर इम्पोर्टेंट। सो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स, just 1 minute. अच्छा ट्रेट्स और एलील्स हमने कल लिख लिए थे, है ना। सो वी नीड नॉट नोट देम डाउन अगेन। Yes, ma'am, done. Okay. Right? So these are the traits. Eye color, flower color. उसके अलावा जो अलग अलग फॉर्म्स हैं आई कलर की, जैसे दिस
color, I think it's gray, फिर brown eye color, these are the alleles. ठीक है? So inherited traits are those which are controlled by genetic material, okay, and are obtained from parents in inheritance. कि आपको parents से ही मिलेंगे, इसके अलावा किसी से नहीं मिल सकते. मैम ट्रेट्स क्या होता है? हाँ जी. What do we mean by traits? Traits. देखो, traits are features, okay, features that you can see on the outside, or you know, features which are peculiar. जैसे कि आपका hair color, that is a trait. ठीक है ना, वो आपके अंदर है, क्वालिटी है, तो दैट्स अ ट्रेट. बट उस हेयर कलर की अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है, इट कुड बी ब्राउन, इट कुड बी येलो, इट कुड बी ब्लैक, दैट इज द एलील फॉर दैट ट्रेट. ठीक है, तो एलील ट्रेट एक कैरेक्टरिस्टिक है, एलील उस कैरेक्टरिस्टिक की अलग अलग इंफॉर्मेशन है, राइट. तो ये थोड़ा सा मेंडल के बारे में, सी ही वाज मेंडल, देख लिया ना फेस सबने, ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. So he was the one जिन्होंने basic principles lay down किए थे. तो आज भी you know, even when I was in the second year of my graduation, मैंने भी उस time पे एक experiment किया था which was totally and purely based on the laws of Mendel. ठीक है, हालांकि only one of his proposed law is universally correct and acceptable, बाकी तो उनके universal नहीं है, लेकिन फिर भी they are so you know, you can say conceptual, इतने ज्यादा वो mathematically correct है laws कि उनको काफी चीजों के लिए, जेनेटिक स्टडीज के लिए हम यूज करते हैं. Yes, नहीं तमंजो लिखना नहीं था. आई थिंक विराज इज ट्राइंग टू से समथिंग, हिज माइक इज ऑन. चलो एनीवेज, ठीक है. Okay, so what is a hybrid? Hybrid is, you know, the offspring of individuals that differ with regard to certain traits or certain aspects of genetic makeup. यानी कि एक ऐसा offspring जिसके अंदर combination है, ठीक है, of both the parents is a hybrid, right? इस चीज को note down कर लो. Done, ma'am. Yes, Naman. Kids are hybrids. Okay. मैम एक बार ऊपर कर दो. हाँ, एक मिनट. पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम. इस चीज को याद रखना क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है, राइट. द क्वेश्चन कुड बी कि व्हाई डिड मेंडल चूज पाइसम सटाइवम इंस्टेड ऑफ एनी अदर प्लांट. तो पाइसम सटाइवम साइंटिफिक नेम है, बोटानिकल नेम है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये कौन सा प्लांट लिख दिया इन्होंने. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर थिंग, साइंस के पेपर में जब भी कोई बोटानिकल नेम लिखते हो, ऑलवेज रिमेंबर कि दोनों को अंडरलाइन जरूर करना, राइट. Yes, Siddhant is asking that is liger a hybrid? Yes, liger is 100% a hybrid क्योंकि वो lion और tiger के gametes को fuse करके बनाया गया. ठीक है. Hybrid, you know, generally हम बोलते हैं जब हम दो अलग अलग species के उसके लिए use करें. But yes, hybrid is a very general term. अब उसे particularly use किया जाने लगा है for, you know, the interbreed species or the interbreed crosses that are being done by the scientist. ठीक है. पाइसम सटाइवम इज द बोटानिकल नेम. पहला वर्ड कैपिटल बनेगा, सेकंड वाला स्मॉल बनेगा, और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना, सिंगल लाइन नहीं मारना. ओके. ओके, सो आर्यमन इज आस्किंग दैट मैम कैन वी मेक अ हाइब्रिड आउट ऑफ एनी टू एनिमल्स. सी, हर यू नो, कोई भी दो एनिमल्स लेके आप ऐसे नेसेसरली नहीं बना सकते हो, क्योंकि
जितने भी हाइब्रिड अभी तक बनाए गए हैं दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द एनिमल्स जिनका क्रोमोसोम नंबर सिमिलर है. ओके, बिकॉज अगेन जैसे मंकी है या एप है, उनका क्रोमोसोम नंबर इज सिमिलर, इट इज समवेयर अबाउट 45 to 46. तो अगर मुझे गैमीट फ्यूज करवा के एक जाइगोट प्रिपेयर करना है, उसके लिए मुझे क्रोमोसोम्स भी तो सिमिलर ही चाहिए ना. अगर मैं एक एनिमल लूं जिसके 10 क्रोमोसोम है और एक एनिमल लूं जिसके अंदर 100 क्रोमोसोम है, तो वो जाइगोट बन ही नहीं पाएगा. ओके, सो एनिमल्स व्हिच हैव सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ हाइब्रिड टिल डेट. आगे हो सकता है कोई ऐसी एडवांसमेंट आ जाए टेक्नोलॉजी में जिसकी वजह से बना पाए हम किन्हीं भी दो एनिमल्स के, राइट. चलें आगे. ये चीज हमने लिखी थी कि नहीं? अच्छा, ये हमने डिस्कस की थी, राइट. ये चीज लिख लो दैट व्हाई डिड मेंडल चूज गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. क्वेश्चन लिखना पहले ये वाला, राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, और यहाँ ये रहा आंसर. हमें एक बार दिखा दो. अच्छा, एक मिनट. मैम ये नोट करना है. आइए क्वेश्चन नोट करो और नीचे जो आंसर लिखा है वो भी नोट करना है, ठीक है. हमें ग्रेडन पी नहीं होगा ना, गार्डन पी होगा. हाँ हाँ, वो दैट्स अ टाइपो. And please scroll down. मैम ये सारे उसी पे ऊपर कर उसी का दीजिए. पार्ट. उसी का पार्ट है. मैम एक बार ऊपर करो, 1 second. Yes, ma'am. And ma'am. Okay. Everyone done? No ma'am. Yes, ma'am. नमन जल्दी से करो. Done ma'am. Okay, now see, there is one very important thing कि मेंडल ने टेक्निक क्या यूज की थी. अब देखो, if he was trying to create crosses, यानी कि वो अलग अलग प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन करवा के देख रहे थे, राइट.
बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब उन्होंने पॉलिनेशन करवाई और कोई दूसरा पॉलन आके उस फ्लावर पे लैंड हो गया या सेटल हो गया और वो जर्मिनेट हो गया, राइट? मतलब उसकी पॉलन ट्यूब निकल आई, तो उनका सारा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता है ना. So in that case, whenever hybrids have to be created for plants, what do botanists or the scientists do is, एक तो वैसे भी pea के अंदर क्या है, that pea has a structure something like this. उसके जो petals होती हैं, they are in such a structure कि वो flower पूरा बंद रहता है इस तरह से, ठीक है. ऊपर वाली ये पेटल पूरी बंद कर देती है और बीच में there are 9 anthers together. ये 9 जो होते हैं एक साथ होते हैं और एक 1 अलग से होता है, ठीक है. One was this thing, but फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते. तो what happens is कि अगर मैं इस प्लांट को as a female ट्रीट कर रही हूँ, if I'm treating this plant as female and I'm taking the other plant as male, तो यहाँ पे मुझे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जरूरत नहीं है, right? I do not need the anthers over here. So before the ovary matures, I will cut these anthers. मैं पहले ही इन anthers को remove कर दूंगी. This process is called emasculation. Okay. Can you repeat what is emasculation? I'm writing it down. Removal of the immature anthers before the ovary matures. हमें mature क्या लिखा? Anthers. Right? Emasculation के बारे में लिखेंगे. Okay. And even after that, emasculation करने के बाद what is done is, अब देखो, I will just remove these anthers, ठीक है. And now जो भी स्टाइल है उसके ऊपर मैंने अपनी मर्जी के जो पॉलन्स थे उन्हें लैंड करवाया, राइट? तो मैंने यहाँ से पॉलन लिए और इनको इस स्टाइल के ऊपर डाल दिया. नाउ आई हैव टू मेक श्योर कि कोई बाहर से ना आ जाए पॉलन उड़ता हुआ, है ना? बाहर से भी तो आ सकता है ना यहाँ से. तो क्या करते हैं कि यहाँ पे जब पॉलन्स रख दिए, इसके ऊपर एक बैग लगा के इसे कवर कर देते हैं, ठीक है, ताकि कोई और पॉलन बाहर से ना आ पाए. दिस इज कॉल्ड बैगिंग. Covering the female flower with a bag to avoid. मैम बट अगर हमने आंसर रिमूव कर दिया तो फर्टिलाइजेशन होएगा कैसे? बट फर्टिलाइजेशन के लिए आंसर की जरूरत थोड़ी है. ओवरी के अंदर ओव्यूल तो है, अगर बाहर से कोई पॉलन आएगा तो फर्टिलाइजेशन अपने आप हो जाएगा. द आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस. ओके. ठीक है. सो दीज टू टेक्निक्स आर यूज्ड सो दैट जो हम हाइब्रिड बनाना चाहते हैं वो सक्सेसफुली बन जाए, वरना हमारा सारा एक्सपेरिमेंट बीच में खराब हो जाएगा. ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? सो 1 सेकंड, लेट मी जस्ट, ठीक है, दिख रहा है ना? राइट अप एंड लुक एट द टेक्निक ओवर हियर. ठीक है, दिस इज रिमूवल ऑफ एंथर्स, जिसे हम इमैस्कुलेशन बोलते हैं. एंड आफ्टर दिस when the pollens are dusted over it, यहाँ पे तो फिर भी इन्होंने एंथर्स दिखाए हैं. ठीक है, सो दिस इज सेल्फिंग. जब मैं चाह रही हूँ कि इसी के एंथर्स इसे फर्टिलाइज कर दें, ठीक है, सो सेल्फिंग ये है. जब मैं चाहती हूँ कि किसी और फ्लावर का मैं पॉलन लाके इस पे डालूं, तो दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन. आफ्टर इमैस्कुलेशन द प्रोसेस ऑफ बैगिंग विल टेक प्लेस, यानी कि जिसमें मैं फ्लावर को, फीमेल फ्लावर को एक बैग के साथ में कवर कर दूंगी, so that no foreign pollen can come inside or onto the style and fertilize the flower. बैग मतलब? बैग मतलब ऐसे पॉलिथीन या फिर एक बटर पेपर का बैग होता है जनरली. लेकिन उसमें से ऑक्सीजन और वो सब तो नहीं आ पाएगा.
हाँ, ऑक्सीजन नहीं आ पाता, बट यू नो एज सच इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और बिल्कुल मतलब वैक्यूम नहीं क्रिएट करते हैं उसमें, बस इतना पर्पस होता है उनका कि ये वाला जो एरिया है ये कवर हो जाए, ठीक है। नीचे से एक बार को वो फिर भी पिटियोल वाली जगह से ओपन छोड़ सकते हैं, ये जो पेडंकल होता है यहाँ से ओपन छोड़ देते हैं, राइट, so that the air or the oxygen or carbon dioxide, whichever is necessary, can enter inside it. Okay, Ariman, emasculation. Okay, see, emasculation is basically the removal of the anthers of this plant. If I want कि मैं किसी और प्लांट का जो पॉलन है वो लाकर इस पे डालूं, क्योंकि मैं हाइब्रिड बना रही हूँ, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब है कि मैं चाहती हूँ जो प्लांट अब मेरे पास बने उसमें इसके भी कैरेक्टर्स हो और इसके भी कैरेक्टर्स हो, ठीक है ना। अब अगर मुझे ये चीज करवानी है, आई विल नीड फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस, बट अब पी प्लांट के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि फ्लावर ऑलरेडी बंद है, उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। सो टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन मैं पहले ही उसके एंथर्स जो हैं वो इमेच्योर स्टेज पे ही कट कर दूंगी, ताकि वो मैच्योर हो ही ना पाए और वो सेल्फ फर्टिलाइज ना कर सके, ठीक है। सो आई विल कट दीज एंथर्स, एंड व्हेन दीज एंथर्स आर कट इन द इमेच्योर स्टेज इट इज कॉल्ड emasculation, right? Vedant is asking, why is the process of selfing needed in flowers? What is the purpose? See, selfing is needed जब मुझे pure line बनानी है। Pure line का मतलब है when a plant is reproducing with its own self, उसके जो genes है या उसके अंदर का जो genetic material है वो बिल्कुल pure हो जाता है, सारे के सारे characteristics जो होंगे बिल्कुल concrete उसके अंदर pure हो गए हैं, ठीक है। There is no mixture or recombination inside that plant now, क्योंकि वो खुद के साथ ही जो है pollinate करता जा रहा है। So self-pollination is important when we need to produce pure lines. Okay, ऐसे plants को या ऐसी varieties को हम pure line बोलते हैं, जिसके अंदर किसी भी तरह का recombination नहीं होता, ठीक है। वेदांत, क्लियर है? Yes. ये नोट कर लिया सबने, आगे चले? Yes, ma'am. Okay. ठीक है, सो दीज वर द ट्रेट्स दैट मेंडल स्टडीड। अब यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे डोमिनेंट लिखा है और यहाँ रिसेसिव लिखा है। आई विल कम बैक टू दिस टेबल, एक बार हम जब लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ लेंगे फिर हम इस टेबल को पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, वहां पे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। राइट, सो पहले लॉ बता देती हूँ, उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस वगैरह बताऊंगी। So the first law is law of dominance. ये law कहता है कि जैसे एक trait के लिए there is more than one allele, out of those alleles only one will be dominant, यानी कोई एक ही अपने आप को express करेगा, ठीक है, दूसरा अपने आप को express नहीं कर पाएगा। So जो अपने आप को express कर रहा है वो dominant है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वो रिसेसिव है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, 1 सेकेंड। Do we have to write what's written on the left-hand side? No, not right now. Okay. So the law of dominance says that out of the two alleles for any particular trait, one of them will express itself and the other will not be able to express itself. And the one that is expressing will be the dominant allele and the other one will be the recessive allele. ठीक है, अब आ जाते हैं हम उस टॉपिक पे कि ये जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इसका क्या मतलब है और जो दूसरे वाला नहीं कर पा रहा उसका क्या मतलब है, राइट। सो व्हाट इट बेसिकली मीन्स इज कि जो डोमिनेंट वाला है उसका सीक्वेंस वैसा है कि वो जल्दी से अपने प्रोटीन के लिए एंजाइम बनवा सकता है, ठीक है। द प्रोटीन एंड द एंजाइम व्हिच is required or which it has information for can be made very quickly, whereas जो रिसेसिव वाला है या तो उसका जो जीन है वो एंजाइम या प्रोटीन बना ही नहीं सकता,
या फिर अगर वो बनाता है तो वो बहुत कम क्वांटिटी में बनाता है, ठीक है। सो व्हेनेवर अ थिंग नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड वी वांट कि वो बल्क में एक्सप्रेस हो, यानी कि वो जो प्रोटीन या एंजाइम जिस भी चीज की इंफॉर्मेशन है वो बल्क में बनना चाहिए, है ना, जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी में उतना बने। अगर वो उससे कम बन रहा है इसका मतलब है उसका कोई यूज है ही नहीं, ठीक है ना। सो द जीन विच हैज द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग दिस प्रोटीन और एंजाइम और whatever information the gene is carrying is being created in bulk or is being created in large quantities and in the right way, that is dominant। जो दूसरे वाला है जो नहीं या तो बनाता ही नहीं या फिर बहुत कम क्वांटिटी में बनाता है, that is recessive। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। Yes, ma'am. यस, बाकी बच्चे? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखो। थोड़ा बहुत ये लॉ नाम से भी समझ आ रहा है, ये लॉ का मतलब नाम से भी समझ आ रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। हाँ बिल्कुल। आपने क्या लिखा? आउट ऑफ दी क्या लिखा? Out of the alleles for a trait, one allele expresses itself and is the dominant allele, whereas the other allele which cannot express itself is the recessive allele। ठीक है, and this is the law of dominance। अब कौन सा एलील एक्सप्रेस करेगा वो कैसे पता चले? वो दिखता है ना हमें। अगर आप कोई ऐसा ट्रेट ले रहे हो जो आपको बाहर से ही दिख जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से वाला एलील एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, अभी हम आते हैं, करेंगे क्रॉसेस, डोंट वरी। Ma'am, can we write the monohybrid and dihybrid cross? डोंट राइट इट राइट नाउ बिकॉज थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना था, उसके बाद लिखते तो बेटर होता। या चलो पहले लिख लो, नो वरीज, पहले लिख लो फिर आप लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखो और उसके बाद मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस लिख लो। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस भी लिखने क्या? हाँ जी शौर्य, ये दोनों प्रोसेस भी लिखने हैं? हाँ लिख लो, बिकॉज फिर बाद में एक ही बार में मैं समझा दूंगी, फिर लिखने के लिए आपको वो नहीं करना पड़ेगा। Noted everyone? I made only. Please wait. Okay, okay, लिखो लिखो। And after you're done writing, I want you people to explain the monohybrid cross to me. What does it mean?
लिखा है ना आपने, तो एक बार उसको रीड करो और मुझे बताओ कि क्या मतलब है उसका। मैम यहाँ पर क्रॉस का क्या मतलब है? क्रॉस का मतलब है फर्टिलाइजेशन हो रही है, मतलब रिप्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन टू प्लांट्स। ओके मैम। मैम लिख लिया। चलो फिर बताओ, व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस? मैम मोनोहाइब्रिड का मतलब कि सेम प्लांट के दो ट्रेड्स को जब हम मिला देते हैं। Anybody else would like to try? बोलो, समझ नहीं आया तो मैं बताऊं फिर। Guys, say something please. मैम एक बार आप समझा दो। हाँ ठीक है, कोई नहीं। देखो, मोनोहाइब्रिड का मतलब है when I am taking two different plants and the only difference between them is that single trait, मतलब उनमें बाकी सारी चीजें सेम है, flower color is same, pod shape is same, seed color, seed shape सब कुछ सेम है, बस एक चीज का डिफरेंस है, that one feature. Okay, it could be the height of the plant, right? तो अगर मैंने दो प्लांट लिए जिनके अंदर बाकी सारी चीजें सेम है, बस एक हाइट डिफरेंट है, एक टॉल है और दूसरे वाला प्लांट ड्वार्फ है, और जब मैं इन दोनों प्लांट्स का क्रॉस करवा के एक हाइब्रिड बनाऊंगी, दैट इज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब एक और हाइब्रिड मतलब इनका मैंने हाइब्रिड बनाया, ठीक है। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर वी टेक ओनली, एक मिनट, द क्रॉस इन्वॉल्विंग टू ट्रेट्स ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड, ठीक है। टू ट्रेट्स की जगह ना you do one thing, traits की जगह लिखो alleles, okay? The cross involving two alleles of a single character is called monohybrid cross, whereas the cross involving traits of two characters is called dihybrid cross, ठीक है। यानी कि अगर मैंने एक ऐसा क्रॉस करवाया जिसके अंदर अब मैंने दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए हैं, मतलब एक मान लो मैंने हाइट ले लिया, दूसरा मैंने सीड कलर ले लिया, बाकी सब चीजें सेम है, और अब इन दोनों प्लांट्स के बीच में मैं क्रॉस करवाती हूँ, सो दैट इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये चीज क्लियर है सबको? ओके ओके, वेट, एक काम करते हैं, करके समझते हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने दो प्लांट्स लिए, ओके। ये है मेरा प्लांट नंबर 1, दिस इज प्लांट ए, दिस प्लांट इज टॉल, ओके, एंड इट्स अ प्योर ब्रेड प्लांट, यानी कि मैंने इसकी सेल्फिंग करवाई है ओवर अ लॉट ऑफ जनरेशंस, मतलब 5-6 बार या मे बी 10-12 टाइम्स मैंने इसकी सेल्फिंग करवाई है, तो अभी बिल्कुल प्योर हो गया, यानी अब जब जब इसके सीड्स में लगाऊंगी सारे प्लांट्स टॉल ही आएंगे, ओके। देन मैंने एक प्योर ब्रेड ड्वार्फ प्लांट लिया, ये ड्वार्फ है बी। अगर मैं इसके जीन्स देखूं, ठीक है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट जीन्स, कि इसके जीन्स कैसे होंगे। आई वुड से कि इसके दोनों क्रोमोसोम्स पे कैपिटल टी है, इसीलिए ये सारे टॉल आ रहे हैं, और ये जो है इसके दोनों प्लांट्स पे स्मॉल टी है, ठीक है। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द जीनोटाइप। जब मैं किसी भी एलील को by the help of alphabets represent करती हूँ, that is called the genotype of the plant, यानी कि I am talking about उसके genes कैसे हैं, okay? When I talk about the genes of any organism, be it a plant, be it an animal, while I am, you can say doing a cross for that organism, I call this representation as the genotype. तो ये जो टी है या फिर ये टी है, या ऐसे भी हम देखेंगे अभी कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज द जीनोटाइप, ठीक है।
So Vedanta is asking, ma'am, like in humans it is XX and XY. Yes, that is the genotype. XX is the genotype of a female. XY is the genotype of a male. ठीक है, ये हमारा जीनोटाइप है. मुझे इस जीन से क्या मिलता है? इससे मुझे टॉल मिलता है, इससे मुझे ड्वार्फ मिलता है, और इससे भी मुझे टॉल ही मिलता है, क्योंकि ये जो कैपिटल डी देख रहे हो ये डोमिनेंट है, ये इसे एक्सप्रेस नहीं होने देगा, ये कहेगा रुक जा मैं दिखाऊंगा अपनी. ठीक है, सो दिस इज द डोमिनेंट वन, इसीलिए ये भी टॉल है. तो बाहर जो मुझे अपीयरेंस दिख रही है, द आउटर और एक्सटर्नल अपीयरेंस दैट आई कैन सी व्हिच इज विजिबल, दिस इज द phenotype. So ऐसे ही XX and XY is the genotype, and what will be the phenotype over here, guys? Female and male. फीमेल एंड मेल. Male and female, right? Male and sorry उल्टा बना दिया. फिनोटाइप जो हमें देख सकते हैं, जीनोटाइप जो हमारी बॉडी में है ना. हाँ बिल्कुल, जीनोटाइप मतलब कि जीन में क्या वो है, जीन में क्या इंफॉर्मेशन है. ठीक है, और फिनोटाइप मतलब उस जीन से बन क्या रहा है या उस जीन का रिजल्ट क्या है. ठीक है, सिंपल इज दैट. ये बात सबको समझ में आ गई? डू वी राइट दिस? नहीं, अभी डोंट राइट इट. ओके, या फिर नहीं, चलो बाद में लिखवाऊंगी आराम से, डोंट वरी. ये चीज क्लियर है सबको? दिस प्लांट इज मोनो प्योर ब्रेड टॉल प्लांट एंड दिस इज अ प्योर ब्रेड ड्वार्फ प्लांट. ठीक है, सो दिस इज द जीनोटाइप. इनको मैं लिखूंगी पेरेंट्स. ये जो है ये पेरेंट्स है. अब देखो हम क्रॉस किस तरह से बनाते हैं. दिस ओवर हियर आई एम डूइंग अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि मैंने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट वन ट्रेट, दैट इज द प्लांट हाइट. और कोई चीज अभी मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि प्लांट के अंदर बाकी सारी चीजें सेम है. ठीक है, सो सपोज यू गाइज आर मेंडल फॉर अ व्हाइल. अपने आप को मेंडल की तरह इमेजिन करो. 2 प्लांट्स है तुम्हारे पास, उसके अंदर बाकी 6 कैरेक्टर्स सेम है. फ्लावर कलर सेम है, फ्लावर पोजिशन सेम है, पॉड कलर, पॉड शेप, सीड कलर, सीड शेप, सब सेम है. क्या डिफरेंस है? बस हाइट का डिफरेंस है. ठीक है, तो ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया. अब ये पेरेंट्स है ना, राइट? ये पेरेंट्स है. नाउ लेट्स सपोज कि ये ड्वार्फ वाले को मैं फीमेल मान लेती हूँ और ये इस वाले को मैं मेल मान लेती हूँ. ठीक है, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? इमैस्कुलेशन इसमें करूंगी ना मैं. आई हैव टू रिमूव द एंथर्स ओवर हियर, राइट? बोलो बोलो. ये फीमेल प्लांट है तो मुझे इसमें इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा, एंथर्स को रिमूव कर दूंगी. ठीक है, नाउ आई विल पुट अ क्रॉस बिटवीन देम टू रिप्रेजेंट कि इन दोनों के बीच में अब मैं क्रॉस करवा रही हूँ. अब इनके गैमीट्स बनाते हैं. ठीक है, मियोसिस होगा, ऑब्वियस सी बात है, मियोसिस में गैमीट्स बनते हैं. सो हाउ डज द क्रोमोसोम नंबर चेंज? इट बिकम्स हाफ. क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है ना? यस मैम. तो अगर 2 गैमीट्स बने, एक टी इसमें आ गया, एक टी इसमें आ गया. ऐसे यहाँ पे भी जितने भी गैमीट्स बनेंगे, एक टी इसमें, एक टी इसमें. ये बात यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम. ठीक है, एंड प्लीज ये मत समझना कि सिर्फ 2 ही गैमीट्स बनते हैं. ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल लेके बता रही हूँ. बनेंगे काफी सारे, बहुत सारे सीड्स आते हैं ना, लेकिन सब में टी ही होगा, क्योंकि दिस इज अ प्योर ब्रीड. इसमें सारा टी टी ही है, कैपिटल टी चल रहा है सब जगह, और यहाँ पे सारा स्मॉल टी चल रहा है. So all the gametes will have capital T और यहाँ पे all the gametes will have small t. तो यहाँ पे I will write down the gametes. ये हमारे gametes हैं. ठीक है? Okay, Naman is asking what is the genotype in a transgender? Transgender को actually हम eunuchs बोलते हैं. उनके अंदर होता है X and Y. ठीक है? This is a syndrome. Klinefelter syndrome है, reproduction वाले chapter में पढ़ोगे. Okay? All right. यहाँ पे आ जाओ वापस. ये गैमीट्स बन गए. नाउ यू नो कि गैमीट्स में रैंडम कॉम्बिनेशंस होते हैं. ये चीज सबको पता है ना. अब ये मेल गैमीट्स है और ये फीमेल गैमीट्स है, तो इनके बीच में कॉम्बिनेशन होंगे. दिस कैन फ्यूज विद दिस टू फॉर्म व्हाट? कैपिटल टी, स्मॉल टी. ठीक है, देन अगेन ये वाला इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है. अगेन क्या बनेगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी. अब इस पे आ जाओ. ये वाला इसके साथ में फ्यूज करेगा, दिस विल फॉर्म कैपिटल टी, स्मॉल टी.
ये वाला इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है टू फॉर्म कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड दिस इज द फर्स्ट जनरेशन। ये जो है हमारी F1 जनरेशन है। F1 की फुल फॉर्म होती है फिलियल। ओके, F1 जनरेशन। हाँ बोलो। It can also be small t, capital T. हाँ, स्मॉल टी कैपिटल टी भी हो सकता है, ठीक है, बट हम जो कैपिटल वाला होता है उसको पहले रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? वी रिप्रेजेंट द कैपिटल वन फर्स्ट बिकॉज इट्स डोमिनेंट। Okay. ओके, डजंट ऑल टी टी सेम? हाँ, बिल्कुल, सारे कैपिटल टी स्मॉल टी सेम है, यानी कि इन दोनों प्लांट्स को जब मैं क्रॉस करवाऊंगी, एक टॉल और एक ड्वार्फ, क्रॉस करवाने के बाद मेरे पास जो फर्स्ट जनरेशन आएगी उसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस इज द जीनोटाइप। एंड व्हाट इज द phenotype over here? This T is dominant, इसका मतलब ये सारे क्या हैं? टॉल हैं। All these plants are tall. यहाँ तक समझ कैसे चलेगा कौन सा डोमिनेंट है? कैसे पता चलेगा? अरे वो तो दिखेगा ही ना, बाहर से प्लांट्स टॉल होंगे तो बाहर से ही देख पाओगे आप। When the plants will grow, जब वो प्लांट्स मैच्योर हो जाएंगे तो आपको बाहर से देख के पता लगेगा कि वो प्लांट्स टॉल हैं, राइट? ये और जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है ये हमने अपनी उसके लिए बनाए हैं। What has happened to this one? One second. हाँ, ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये ऐसे मतलब होते नहीं है, ये हमने अपनी स्टडी के लिए लिखे हैं टर्म्स, ठीक है ना? मुझे अंदर का सीक्वेंस थोड़ी ना पता है कि क्या सीक्वेंस है उसकी हाइट के लिए, बट मैं उस पूरे जीन को ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ कैपिटल टी से, और ड्वार्फ वाले जीन को मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है? बोलो बोलो, समझ में आई ये चीज? यस मैम। क्या क्या टॉल क्यों होगा? क्योंकि जो टॉल वाला जीन है वो डोमिनेंट है, वो इतना सारा टॉल वाला प्रोटीन बना रहा है कि वो इस ड्वार्फ वाले टी को रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा। ओके, दैट इज व्हाई this capital T over here is masking the effect of this small t gene. So which gene out of these two is dominant? कैपिटल टी, कैपिटल टी। So if a question comes, which allele is dominant? Capital T. ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा F1। हम जब क्रॉस करते हैं हम एक और जनरेशन देखते हैं, क्योंकि आप एक ही जनरेशन देख के तो नहीं छोड़ सकते हो ना। वही वाली बात है कि आपने देखा कि आपके अंदर आपके दादी दादू के भी कुछ ट्रेड्स होते हैं, तो हमने वही चीज देखनी है कि आगे क्या होता है। अब ये तो F1 जनरेशन है, यानी पहले पहले जो इनके ऑफस्प्रिंग हुए ये वो है। अब क्या करते हैं, इसी में से दो को लेंगे और उनका क्रॉस करवा देंगे, ठीक है? इन्हीं में से कोई दो को लेंगे और उन्हीं का क्रॉस करवा देंगे। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है? जरूरी नहीं है इन्हीं की कोई दो का क्रॉस करवाएं, सेल्फिंग भी करवा सकते हैं। ओके, दे कैन परफॉर्म सेल्फिंग ऑल्सो। मैम ये तो एक तरीके से सेल्फिंग ही है ना, क्योंकि दोनों तो सेम ब्रीड के ही है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से सेम, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सेल्फिंग भी करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है अलग अलग लेना। नमन इज आस्किंग हाउ इज टी डोमिनेंट? अरे बाप रे, अभी तो बता रही हूँ, टी डोमिनेंट इसलिए है क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, और मुझे ऐसे दिख नहीं रहा है अंदर की कैपिटल टी है या कुछ है। इट्स जस्ट दैट जो हाइट लंबी करने वाला जीन है उस पूरे जीन को मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं उसे ABCD भी नाम दे सकती हूँ, बट बिकॉज टॉल और ड्वार्फ को टी से रिप्रेजेंट करना ज्यादा आसान है ना? टी फॉर टॉल होता है तो इसीलिए, राइट? ओके, नाउ आई विल दोनों स्मॉल टी और दोनों कैपिटल टी भी तो बन सकते थे। क्या दोनों स्मॉल टी और दोनों कैपिटल टी? नहीं, कैसे बनेंगे? देखो, फादर से ये वाला जीन मिला, मदर से ये वाला जीन मिला, तो कैपिटल टी स्मॉल टी तो बनेगा, है ना? देखो, एक
गैमीट में से एक फादर से आता है और एक मदर से आता है. ओके, one has to come from the father and one from the mother. So that is why capital T small t बनेंगे सारे. इसीलिए मैंने करके भी दिखाया ऐसे क्रॉस. ये चीज सबको क्लियर है कि कैपिटल टी तो मैम अगर कोई किसी रीजन की वजह से वो जो कैपिटल वाले टी हैं वो दोनों जुड़ जाए, मतलब उन दोनों फ्यूज हो जाए, तो फिर क्या होगा? नहीं, वो जुड़ते ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि वो अलग अलग गैमीट्स में है. कभी दो स्पर्म फ्यूज हो सकते हैं क्या आपस में, कि दो स्पर्म फ्यूज हो और चाइल्ड क्रिएट हो गया, या फिर दो ओवम फ्यूज होके बेबी बन गया? नहीं होता ना ऐसे. स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से ही रिप्रोडक्शन आगे चलती है. इसी तरह से यहाँ पे भी अगर ये पॉलन है और ये ओवरी है, इन्हीं के प्रोडक्शन से आगे सीड बनेगा. दो पॉलन के फ्यूजन से बन ही नहीं सकता. ठीक है? ओके मैम. ऑलराइट, इसको ना हर चीज को उस तरीके से रिलेट करके चला करो. थिंक ऑफ इट कि जैसे स्पर्म और ओवम के अंदर भी यही चीज हो रही है, राइट? सो हियर व्हाट इज द जीनोटाइप? F1 में देखते हैं. जीनोटाइप इज, जल्दी बताओ, व्हाट इज द जीनोटाइप ओवर हियर? कैपिटल टी स्मॉल टी. कैपिटल टी स्मॉल टी. हाँ, सभी का सेम है तो बस एक ही बार लिख देते हैं. एंड व्हाट इज द फिनोटाइप? और अब मैं देखती हूँ कि अगर मैं इसकी सेल्फिंग करवाऊंगी तो क्या होगा. तो अब ये हमारे पेरेंट्स हो गए, ठीक है? इनके गैमीट्स बनाते हैं. ऊपर यहाँ लिख देते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस. पहले समझ लो, बाद में टाइम दूंगी, नोट कर लेना. गैमीट्स बनाओ जल्दी से. टेल मी व्हाट विल बी द गैमीट्स ओवर हियर. Capital T small t. Capital T small t. कैपिटल टी स्मॉल टी. अब दूसरी जनरेशन बनाए तो दूसरी जनरेशन विल बी F2. ठीक है, क्योंकि F1 तो यही थे खुद, तो अब इनकी नेक्स्ट जनरेशन F2 होगी ना. क्रॉस करते हैं. ठीक है, अगेन ये कैपिटल टी. अब देखो, अब कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी आ रहा है क्योंकि दोनों अलग अलग प्लांट्स हैं. दिस फॉर एग्जांपल इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल. तो ये कैपिटल टी इसके साथ आ सकता है. अब दिस विल बी कैपिटल टी कैपिटल टी. ये वाला टी अब इसके साथ भी जाएगा. So now I will get capital T small t. Now comes this one. ये इसके साथ में again capital T small t, और ये फिर इसके साथ में small t small t. सबको समझ में आ गया ये स्टेप? Yes. So what is the genotype here? Capital T capital T. And what is the phenotype? हाँ, और what is the phenotype? Tall. Tall. यहाँ पे phenotype बताओ. Tall. Next. And last वाला? Small. T for tall. ठीक है, देखो यहाँ पे आके ना F2 में हम रेशो निकालते हैं. ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है. So there is what is the genotypic ratio? जीनोटिपिक रेशो क्या है? अब आपको कितने तरह के जीनोटाइप यहाँ पे दिख रहे हैं? हाउ मेनी जीनोटाइप्स कैन यू सी? 3. एक हो गया, हाँ, एक हो गया कैपिटल टी, एक ये हो गया, और तीसरा हो गया ये. ठीक है, तो हमारी जो जीनोटिपिक रेशो आएगी वो आएगी 1, क्योंकि ये 1 हो गया. ये वाले कितने? 2 है ना, ऐसे वाले 2 हैं, तो 1:2:1. दिस इज द जीनोटिपिक रेशो. ये सबको समझ में आई बात? No. नहीं आई? अच्छा, देखो कितने तरह के जीनोटाइप है यहाँ पे. 3 तरह के है ना. एक है कैपिटल टी. एक और जीनोटाइप कौन सा है? कैपिटल टी स्मॉल टी. और थर्ड कौन सा है? कैपिटल टी. ये कितने हैं? 1. ये कितने हैं? कितने आए हैं इसके अंदर? 2. और ये कितने हैं? 1. तो अब इनकी रेशो क्या है? 1:2:1. यही तो आया, 1:2:1. समझे? फिर से बता दो. 1:2:1. हाँ, बताते हैं, एक मिनट. सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप ओवर हियर. कौन कौन से जीनोटाइप्स है यहाँ पे? एक ये कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, और थर्ड टाइप है स्मॉल टी, है ना.
तो कैपिटल टी वाले कितने हैं? 1 है। स्मॉल टी कैपिटल टी वाले कितने हैं? 2 है, एक ये रहा और एक ये रहा, इसीलिए 2 आ गया। और स्मॉल टी वाले कितने हैं? ओनली 1 अगेन, सो यहाँ पे 1 आ गया फिर से। सो दिस रेशियो इज दिस, ठीक है। कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी, स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी। तो रेशियो आ गई 1:2:1, ठीक है। And now Okay, what ma'am. will be the phenotypic ratio? How many phenotypes do you see over here? हाँ ठीक है, 3:1, तो ठीक है। phenotype है कौन कौन से? टॉल और डॉर्फ। तो टॉल इज टू डॉर्फ हो जाएगा। कितने टॉल है? 3, और डॉर्फ कितने हैं? 1। तो phenotypic रेशियो आ गई 3:1। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की phenotypic रेशियो बताओ और मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जीनोटिपिक रेशियो बताओ, ये क्वेश्चन आता है। हाँ समिक, यस, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी एक ही बात है। ओके, इट्स द सेम थिंग। ये चीज सबको समझ में आ गई? यस 3 टॉल मतलब फर्स्ट के 3 ना? हाँ, फर्स्ट के 3 टॉल और लास्ट वाला डॉर्फ। क्योंकि वो डोमिनेंट है इसलिए हम उसकी रेशियो पहले लिख रहे हैं। 1:3 भी लिख सकते हो, पर डोमिनेंट वाला पहले लिखना है इसलिए 3:1। ओके, यू कैन राइट इट द अदर वे राउंड आल्सो, वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। तो आप सबको समझ आया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम किसी एक ट्रेट को ही देख रहे हैं, उसके अलावा हम और किसी ट्रेट की बात नहीं करते। क्लियर है? यस, ओके। एक और चीज समझो, when the condition is something like this, यानी कि I either have 2 dominant ones together या फिर 2 recessive ones together, this situation is called homozygous। यानी कि या तो दोनों डोमिनेंट साथ साथ है या दोनों रिसेसिव, मतलब एक ही तरह के जब दो साथ में होंगे दैट इज होमोजाइगस। लेकिन जब दो तरह के होंगे साथ में दैट इज हेट्रोजाइगस, यानी कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस होता है। अभी कॉपी करना है? हाँ, ये कॉपी करना है, ये पूरा क्रॉस यहाँ से लेके यहाँ रेशो तक कॉपी कर लो, ठीक है। और साथ साथ ये भी लिखना, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी इज होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि यहाँ डोमिनेंट वाले हैं दोनों साथ में, एंड स्मॉल टी इज होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि ये दोनों रिसेसिव वाले साथ में। मैम होमोजाइगस के सामने क्या लिखा है? होमोजाइगस के सामने डोमिनेंट। जब वो दोनों बड़े बड़े वाले साथ में होंगे ना तो होमोजाइगस डोमिनेंट, जब दोनों छोटे छोटे वाले साथ में तो होमोजाइगस रिसेसिव, और अगर एक बड़ा छोटा साथ में तो हेट्रोजाइगस। हेट्रो का मतलब ये होता है ना डिफरेंट, तो दो डिफरेंट वाले साथ में इसलिए हेट्रोजाइगस। मैम स्मॉल टी होमोजाइगस, स्मॉल टी इज होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि वो रिसेसिव है, दोनों छोटे वाले हैं। स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी भी हेट्रोजाइगस ही होगा, ठीक है। बट सी व्हेन वी राइट इट फॉर द सेक ऑफ सिमेट्री एंड सीक्वेंस वी राइट द कैपिटल वन फर्स्ट एंड देन द स्मॉल वन, क्योंकि कैपिटल वाला अपने आप को एक्सप्रेस करता है। सो यू नो इन ऑर्डर टू क्लेम इट्स डोमिनेंस हम उसको पहले लिखते हैं, ओके। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस सबको समझ में आ गया, ये होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पेपर में अगर आएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाओ प्लांट की हाइट के लिए, तो इसी तरह से बनाना है। आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पे भी यही टर्मिनोलॉजीज यूज की हुई हैं, ओके। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी ऑल ऑफ दिस हैज बीन यूज्ड देयर। F1 फ्लायर क्या लिखा है आपने? फिलियल FILIAL। फिलियल का मतलब होता है चाइल्ड, बच्चा। हम इसके जो क्वेश्चन देंगे वो वर्ड फॉर्म में कैसे होंगे?
क्वेश्चन वर्ड फॉर्म में, सी एज सच इसके क्वेश्चन आपको वर्ड फॉर्म में आते नहीं है। आपको जब क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से उसे रिप्रेजेंट करना होता है। ओके 4 मार्क्स का आ सकता है, 3 मार्क्स का आ सकता है, ज्यादा का भी आ सकता है। पूरा इस तरह से एक्सप्लेन करके लिखो, फुल मार्क्स मिलते हैं। सिर्फ एक बनाए तो क्या सिर्फ एक, मतलब F1 तक मत बनाना, ठीक है, क्योंकि आपकी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो पूरी F2 तक आती है ना, F2 से ही पता लगेगी हमें, तो पूरा F2 तक बनाना होता है आपको। ठीक है, ये जो है प्लीज आज रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इससे पहले रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया है अगर अच्छे से, तो डाई हाइब्रिड अपने आप समझ में आ जाएगा। सो गो थ्रू दीज टर्म्स कि कैपिटल टी क्यों है, व्हाट इज प्योर ब्रीड, व्हाट इज जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये सारी चीजें जो है प्लीज गो थ्रू देम। अगर हैंडआउट्स हैं आपके पास तो और भी अच्छी बात है, उन्हें भी रीड करना, एक बार एनसीईआरटी भी कोशिश करना रीड करने की, राइट। सो गो थ्रू दिस मटेरियल, कीप ऑन रिवाइजिंग। F1 F2 दोनों को हाँ, दोनों को फिलियल कहेंगे क्योंकि वो उसी के वो है ना। देखो ये F1 वाले इनके बच्चे हैं, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ दीज वंस। F2 वाले इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं। ओके, सो दोनों को F से ही रिप्रेजेंट करते हैं। आगे आगे बस यहाँ का नंबर सबस्क्रिप्ट चेंज होता जाता है, 3 4 5 6 ऐसे ऐसे। ठीक है, सो हैज एवरीबॉडी नोटेड दिस? Yes, ma'am. Okay, chalo, so I'll stop sharing. I believe you have a maths class now, right? Let's meet in the next हमें class. एक बार दिखा दो बस एक। अच्छा, एक मिनट। Thank you, ma'am. Okay, bye bye everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Have a nice day.